do you think Captain Nick was a bit early of its time? People are extremely fond of the mother character. माता जी भी नाम मैंने नहीं दिया उस कैरेक्टर को, वो कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने आप लिखना शुरू किया था. So Niharika, when anybody looks at your work, पिछले 10 साल में you have created so many characters. So we are going to put that to a test today. So I have these two jars. एक में है situations और एक में है characters. So you're going to pick a situation and a character. Let's try to get into your thought process. Oh, tech startup bro. और situation है Relatives come for a surprise visit. Okay. बताओ. Oh boy. So What would you want to tell this young budding content creators? जब तक आप अपने शरीर को उठा के वो चीज कर नहीं लोगे तब तक वो होगी ही नहीं. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने बोला आज तक मैंने कभी करियर में इसके बारे में बात नहीं की है. 2020 में कुछ ऐसा हुआ था. नाउ डजंट मैटर कि मेरे फादर आईसीयू में थे एंड डॉक्टर हैज आस्क्ड मी कि आप रिलेटिव्स को बुला लीजिए, और वहीं पे मुझे एक ब्रांड वीडियो देनी थी क्योंकि मुझे वो पैसे भी चाहिए थे हॉस्पिटल में देने के लिए. ऐसे वक्त पे भी आपको फनी कंटेंट डिलीवर करना है. अब कैसा हो गया ना, इफ यू लुक एट द कमेंट सेक्शन, उसमें या तो कोई आपसे अग्री कर रहा है या तो डिसएग्री कर रहा है. बट इन बोथ द केसेस यू आर विनिंग एज अ कंटेंट क्रिएटर क्योंकि कमेंट तो आ ही रहे हैं. लाइक आई सेड, कंटेंट क्रिएशन यू हैव टू लर्न एवरी डे. When you are creating a long form versus when you are creating a short form, process क्या फर्क रहता है? जो अभी मैंने इंस्टाग्राम रील पे डाली थी, देसी मॉम इन हर डाउटिंग फेस, वो सेम चीज हमने यूट्यूब वीडियो बनाई है विच इज ऑफ 15 मिनट्स. अच्छा. अब आप इसमें पूछोगे कि प्रोसेस क्या है. सो व्हेन इट्स So before we begin this episode, we want to request you that if you are watching this episode, please go to the comment section and click on that hype button. Every time you hype this video, some creator's career is made. So do that. Let's begin. Niharika, welcome to Digitech Presents, the creator room. थैंक यू सो मच. Manish bhai, you are also here today. Yeah, I'm a big fan. अरे I'm आई एम अ बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू. अरे दिग्गज बैठे हैं सामने. making us feel like oldies here. अरे I have no problem in being called old. I'm gonna be 40 in a year, and Oh. that's fine. That's okay. I'm it's far been- far away from 40. So. Yeah, but what it's is been 40? your characters are 40 plus. sir, Yeah. definitely. Yeah. So talking about your character, Niharika, do you think Captain Nick was a bit early of its time? I'm not sure early, but एक साल के बाद जो ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ उस चैनल पे, which Started in 2015. no, technically 16. 15 में चैनल बना था, so that's why it shows 15. Okay. बट 16 में किया एंड एक साल बाद वो ट्रैफिक आना वहाँ पे स्टार्ट हो गया. एंड देन आई रियलाइज दैट पीपल आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द मदर कैरेक्टर दैट आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग हियर. एंड उसके बाद तो माता जी भी नाम मैंने नहीं दिया उस कैरेक्टर को, वो कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपने आप लिखना शुरू किया था. एंड दैट्स हाउ दे नेम्ड माई कैरेक्टर माता जी. मुझे नहीं लगता कि इट वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम. डेफिनेटली जितना ट्रैफिक हम एक्सपेक्ट करते थे उस वक्त उतना नहीं आया था. But then people ka acknowledgement was very clear on my channel. So Niharika, when anybody looks at your work, पिछले 10 साल में you have created so many characters and you are masters of creating characters. So we are going to put that to a test today. So what I have is I have these two jars. एक में है situations और एक में है characters. So you're going to pick a situation and a character, and what we really want is your thought process for anybody who's watching this and wanting to create characters for their videos, Right. so that you can, whenever you are thinking of it, like how you think about it, how you go about it, and how you really approach कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. We want to see that process. So I'm gonna pass this. There you go. विजय कुछ नया नया ट्राई करते रहता है, so it's good. The Delulu best friend. The little best friend. By the way, निहारिका, आप कितना ये Gen Z टर्म से एकदम रिलेट कर पाती हो, या आपको ऐसा सर सरप्राइज मेरे होता है? बारे में एक बहुत गलत धारणा हुई है हाँ. इंस्टाग्राम पे कि आई हेट जेंजीज वेयरएज आई लव देम. मेरा एक चल गया है इंस्टाग्राम पे, फ्रस्ट्रेटेड मिलेनियल्स विद जेंजीज, बट आई एम नॉट द वन हु इज फ्रस्ट्रेटेड गाइस. बहुत ऐसे हैं जो है रियल लाइफ में, मैं नहीं हूँ. मुझे सिर्फ एक कॉल आया था मेरी बहन का जो जेंजी है. आई डोंट अंडरस्टैंड सर, मतलब इनके पास शब्द क्यों नहीं है बोलने के लिए. हाँ, exactly. उसने मुझसे फोन पे लिटरली यही बात हुई थी. सो आई वांट टू बाय समथिंग फॉर माय देयर इज अ इवेंट एट माय कॉलेज, यू नो, लाइक आई वाज लाइक इसमें लाइक क्यों है. हाँ.
So I want to wear something that's black. मतलब something that's black is black. Yeah. तो कह रही है no, but something that's like denim and like उसका बोलने का मतलब ये था कि मुझे ब्लैक डेनिम पहनना है, इसको क्या, अब उसमें 6 बार उसने लाइक वर्ड यूज लाइक किया और उसके बाद एंड एवरीथिंग हाँ, बोलते हैं ये लोग. मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब समथिंग लाइक डेनिम कुड बी डेनिम एंड ब्लैक इज ब्लैक. महक, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट? Exactly, Delulu. So I was like, this generation, they lack words. Yeah, they need to read books. They need to read books. Correct. And to like speak and form a proper sentence. Probably they know what they want, but they don't know what they want. They are always confused. I don't know why it is like this, sir. तो मेरा इतना ही frustration है Gen Z से कि please be clear what you want from me. I'll give it. No problem in giving, but please be specific. And the situation is? And the situation is fake sick leave. Okay. वो email करना है. बताओ. Oh boy. So डेलुलू बेस्ट फ्रेंड बेसिकली ये होते हैं जिनको लगता है कि वो किसी और के बेस्ट फ्रेंड हैं, जबकि वो होते नहीं हैं. उनके मन में वो होते हैं. उनके मन में वो होते हैं कि भाई मैं तो मेरे बिना तो इसका जिंदगी ही नहीं चलेगा और इसको लेना है फेक सिक लीव. ओके, तो अगर ये ऑफिस में काम करती है, कोई नई इंटर्न है, वैसे ही ईमेल जा सकता है, तो प्रॉबेबली वो अपने कंपनी में यही सिक लीव डाल रही है कि भैया मेरे घर में मेरी मम्मी जो है बहुत बीमार हैं, उनको ऑपरेशन के लिए हम लेके जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, इसके लिए मैं 2-3 दिन नहीं आ सकती. Whereas what she really wants to do is go to her best friend, probably sort some of her very stupid breakup issue जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ चल रहा है. क्योंकि डेफिनेटली इनको लगेगा कि नहीं, बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, पैसा तो आता जाता रहेगा, बट ये ऐसा हो सकता है. हाँ. लेकिन एक थिएटर में हमें सिखाया था जो फर्स्ट फ्यू थॉट्स होते हैं ना, उसमें से जो पहला होता है ना वो हमेशा कैंसिल कर दो, क्योंकि बहुत जन वही सोच रहे हैं. सो ऑलवेज गो फॉर द थर्ड वन और प्रोबेबली द फोर्थ वन, क्योंकि वो शायद नया हो सकता है, रिस्की भी होगा. बट अभी फर्स्ट थॉट तो ये आया विजय. वो क्या सिचुएशन और क्या है उधर. हाँ. Oh, this is the character, the startup bro. अच्छा, tech startup bro is the Tech, character. tech startup bro. Hey Is the Bhagwan. character. Can I pick another character? और situation है. Relatives come for a surprise visit. ओह. तो एक टेक स्टार्टअप ब्रो है जिसके रिलेटिव्स ऐसा सरप्राइज विजिट के लिए आ रहे हैं. अगर मैं हूँ ये, तो मैं तो घर से निकल जाऊंगी, क्योंकि मुझे रिलेटिव्स आते हैं घर पे, मुझे वो पसंद ही नहीं. मैं तो बोलूंगी भाई मेरा नया टेक स्टार्टअप है, मेरा बैंक में भी वो लोन के लिए बात करने जाना है, ऐसा ऐसा मम्मी, तो मैं घर पे नहीं रह पाऊंगी. आई एम सॉरी, आई एम द गेटिंग आउट ऑफ द हाउसेस. बट यहाँ पे लिखा है सरप्राइज विजिट, तो आपको पता नहीं है कि वो आने वाले हैं, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो भी आप यही बहाना बना के जा सकते हो. तो मैं तो बेसिकली यही बोलूंगी, इट्स लाइक आंटी जी So how will you develop that character? Let's say you are creating a skit around this. How will you develop that character? What would that guy be doing? या कैसा होगा, कैसा सोच रहा होगा, उसका अटायर क्या होगा? So let's think about this from how would you integrate that in the video सबसे that you're पहले making. तो अगर ये स्टार्टअप वाला बंदा है तो ये अभी तक काम नहीं कर रहा है. नहीं मतलब वो लड़की भी हो सकती है. हाँ, मतलब इंसान. तो ये अभी तक तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो रिलेटिव से वो एक प्रेशर और क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा, अभी क्या करते हो बेटा, अभी क्या कर रहे हो, अभी अच्छा कोई जॉब नहीं कर रहे हो, घर पे ही बैठे हो. हाँ नाइस. No, take startup bro. हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो मीनू है ना, वो लग गई ना, कनाडा जा रही है 2 साल के लिए. हाँ, तो ऐसा सब वो रिलेटिव्स आते ही मुंह है इसके लिए शो ऑफ करने. ये तब नहीं आते जब इनकी लंका लगी होती है, जब इनका घर पे सब अच्छा होता है ना, तभी हमारे घर पे आते हैं तो हमको नीचा दिखाने. तो ये इसके लिए आ रहे हैं. और ये बंदा ऑब्वियसली अब रिलेटिव्स के सामने इस लड़की को ऐसे ही बताना है कि हेलो, मैं कुछ हूँ और मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ. तो अपना फाइल्स जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी लेके एकदम ऐसा बैग बना के कि आज ही सारा काम है, आज जितना इम्पोर्टेंट डे कोई डे नहीं रहा है लाइफ में. बैग वैग लेके एकदम चश्मा वश्मा पहन के एकदम सीरियस कि हेलो आप आ गए हैं, बट मुझे इन्वेस्टर अनफॉर्चुनेटली मीटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बैंक के साथ या ये फलाने इनके साथ, तो आई हैव टू लाइक गो, प्लीज एक्सक्यूज मी. मम्मी को बोल देंगे मम्मी मैं लेट आऊंगी क्योंकि मेरा ऐसा स्टार्टअप है. फिर वो पूछेंगे किस बात का है, टेक का है आंटी, आपको समझ में नहीं आएगा. Yeah, that was a nice one. Yeah. ऐसा कुछ बोल के घर से निकल जाएंगे. बस घर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि अभी तक स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हुआ है. वो क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, किस बात का आपका दुकान डाल रहे हैं, क्या फैक्ट्री है, किधर कंपनी है. यू हैव नो आंसर्स ब्रो, बिकॉज अभी तक फाइनेंस आया नहीं है बैंक से.
तो आप घर पे रहिए, मत रहिए, आप चले जाइए घर से बाहर. That was a nice one. That was a good And one. so spontaneous. Yeah, that was very. Like that was so यहाँ good. पे she doesn't have a thinking time. It's rolling, you know. Hmm. And like on the go ये करना. That's exactly what her craft is. That's why she's winning for 10 years. God blessed you with the talent of observation and all. But tell me something about commitment, consistency, discipline. How have you learned your lessons in last 10 years about this? एब्सोल्यूट हार्ड वर्क यहीं पे Correct. जितना आपने मेंशन किया है ये सब इतना टाइम कंज्यूमिंग एनर्जी कंज्यूमिंग चीज है ना कि इट्स ओनली यू फॉर यू इन दी एंड. हाँ. पूरी दुनिया आपको बोलते रहे कि नहीं मेहनत करना ये करना है, जब तक आप अपने शरीर को उठा के वो चीज कर नहीं लोगे तब तक वो होगी ही नहीं. नाउ डजंट मैटर कि मेरे फादर आईसीयू में थे एंड डॉक्टर हैज आस्क्ड मी कि आप रिलेटिव्स को बुला लीजिए, ये प्रोबेबली मतलब ही इज गोना पास. और वहीं पे मुझे एक ब्रांड वीडियो देनी थी क्योंकि मुझे वो पैसे भी चाहिए थे हॉस्पिटल में देने के लिए. तो ऐसे वक्त पे भी आपको फनी कंटेंट डिलीवर करना है. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग विच हैपेंड जस्ट बिफोर लॉकडाउन आई गेस. एंड उसके बाद भी काफी टाइम तक वही था. दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो मैंने बोला आज तक मैंने कभी अपने करियर में इसके बारे में बात नहीं की है. उस वक्त वीडियोस बनाने का जो फ्रीक्वेंसी था वो कम हो गया था, बट फिर भी बना ही रहे थे, मतलब क्योंकि पैसे चाहिए थे और पैसे तो इसी से आ रहे थे. ये आपका जॉब है. हाँ जी. तो आई ट्रीटेड माई यूट्यूब चैनल एज अ जॉब. जो आपने कहा वही. और मेरे दोनों माता पिता इतने डिसिप्लिन्ड हैं अबाउट देयर वर्क कि वो चीज उनको देख के मैंने सीखी. एंड आई नेवर ट्रीटेड यूट्यूब एज कि हाँ अभी थोड़ा फेम मिल गया, थोड़ा ये हो गया तो अभी ठीक है मैं ऐसे कर देती हूँ. नहीं, मैंने बोला कि नहीं, उठना है, सोचना है, आइडियाज लिखने हैं, 5 आइडियाज, उस पर काम करना है, उसको शूट करना है. लेकिन वो मोटिवेशन आना और 10 साल तक कंटेंट डिलीवर करना, दैट इज चैलेंजिंग. जो मुझे भी रियलाइज करवाया गया मेरे मैनेजर्स के थ्रू कि आप अभी भी रेस में भाग रहे हो. You have not taken a back seat. That means there's something about you and you yourself should appreciate that before anybody else comes and tells you. तो वो चीज मुझे लगा कि हाँ मैंने कभी गिव अप नहीं किया. शायद मन में तो 1000 बार आया. एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अप, आज छोड़ दूंगी मैं ये यूट्यूब चैनल, मुझसे नहीं होगा, बस हो गया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा अब. फिर कहीं बैग पैक करके चली जाती हूँ इंडिया के किसी कोने में, वहां जाती हूँ, दिमाग खुलता है और लोगों को देखती हूँ, उनको देख के अपने आप आइडियाज आ जाते हैं. फिर मैं अपने आप आके वीडियो लिखने लगती हूँ और वो शूट हो जाता है और फिर ऐसे ही गाड़ी चलते रहती है. सो द वन थिंग इज नॉट गिविंग अप, और उसी में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है. मैं यूट्यूब नहीं छोड़ पाई सर क्योंकि यूट्यूब ने मुझे छोड़ा नहीं. करेक्ट. बीच में एक टाइम था जब पंचेस नहीं आ रहे थे सर, कॉमेडी नहीं आ रही थी शरीर से बाहर, क्योंकि आप वो स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थे. I was not funny, so I couldn't deliver anything funny. Niharika, आपने बोला कि your dad was admitted to the hospital and you have to still make sure that your audience laughs and deliver that content. So ये कितना मुश्किल होता है for a creator to do that, और उसके लिए क्या mindset लगता है कि भाई मतलब अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है जी, बट वो आपके फेस में और आपके कंटेंट में नहीं दिख सकता है, ना आप बता सकते हो. सर इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा था व्हेन गोइंग बैक टू द रेडियो थिंग, बिकॉज आप जो सीखते हो वही आप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करोगे बाद में. तो ये जो आरजे थे, इनके पेट्स थे जो काफ़ी उनके टाइम से उनके साथ थे एंड दे पास्ड अवे. फिर वो सुबह सुबह 7 बजे आके एकदम ऐसे दुखी थे, ऐसे थे वैसे थे, एंड आई एम वॉचिंग दिस इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम ऐसे दुखी है, रो रही है वो. फिर चलो रोल टाइम हो गया, ओके. और आज हमारे आई वॉज शॉक्ड, मतलब दिस गाय वॉज क्राइंग अभी तक. एंड ये कंसोल जो भी है उन्होंने अपना करते ही ही इज लाइक बैक टू दैट द वॉइस दैट ही हैज व्हिच कनेक्ट्स टू सो मेनी मुंबईकर्स अर्ली इन द मॉर्निंग. तो मैंने फिर जाके उनसे पूछा, मैं बोला सर आप ऐसे कैसे? तो बोलते हैं भाई दाल रोटी EMIs रेंट्स तो यहीं से आ रहा है, अब लाइफ तो चलनी ही है. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ माई जॉब इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव टू कीप अ स्माइलिंग फेस एंड क्रैक जोक्स प्रॉपरली. मेरा दिमाग कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ से दिखाऊं? वो थोड़ा प्रेशर फील होता है उस वक्त, जहाँ पे थोड़ा सा नकलीनेस इफ आई वांट टू से वो आ सकता है कॉमेडी में, क्योंकि एक कैरेक्टर जैसे आप बोलते हैं मॉम प्ले करते हो तो उस वक्त कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है सर. जस्ट इमेजिन करते हैं कि मम्मी ऐसे ही बोलेगी, बैठिए वहीं पे सुबह से उठ के मोबाइल चला रही हैं, काम नहीं कर रही हैं अपना. वो सोचना नहीं पड़ता है कि मम्मी कैसे बोलेगी, कैसा मुंह रखूं, कैसे हाथ रखूं, वो अपने आप आ जाता है. बट जब ऐसा सिचुएशन होता है जब आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप सल्क कर रहे हो, उस वक्त थोड़ा और ज़्यादा खुद को मोटिवेट करना पड़ता है. मैं तो 1-2 वीडियोस देख लेती हूँ अपने पुराने. दैट्स हाउ आई पुट माई सेल्फ इन टू दैट कैरेक्टर कि भाई
निकलो इस चीज़ में से, जैसे ही कैमरा बंद होगा वापस सल्क कर लेना, दुखी हो जाना, बट अभी तो काम है तो वो करना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अगेन जो अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो पकड़ लेते हैं कि कुछ आपके लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है, बिकॉज ये वीडियो पहले वीडियो जैसी नहीं थी। जब ऐसे लोग अपना वर्क एथिक दिखाते हैं, दिखाते हैं। जब जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के वर्ल्ड में निहारिका जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, इवन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट भुवन, राइट, लाइक थिंग्स दैट हैपेंड टू हिम ड्यूरिंग कोविड, एंड उसके बाद आके ताज़ा खबर करना, ये करना, वो करना, सब करना, ढिंडोरा हुआ, उसके बाद ताज़ा खबर हुआ, इट शोज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, दैट व्हाई दे आर एट द टॉप, व्हाई दे डिजर्व टू बी एट टॉप, and this is something that you will have to learn if you want to achieve something in life. What really stands out and what makes me respect you and content creators like you a lot is you've spent 10 years in one particular thing. So if I roll back 10 years, 2016 as you said, right, you must be just out of your school. Tell me a little bit about how easy or difficult was it for you to decide कि मुझे यही करना है, वो क्यों आया तुम्हारे मन में, and how did your family support, not support, was doubtful? जी। तो मैंने पढ़ाई की है जर्नलिज्म की। आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, एंड सबको यही था कि जर्नलिस्ट बनूंगी मैं, पर वो चीज़ हेल्थ के वजह से दैट टुक अ बैक सीट। उसके बाद मैंने रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया। आई इंटर्नड विद देम फॉर अबाउट 8 मंथ्स, जहाँ पे मुझे जो मेरे मेंटर थे एक्चुअली, वो टचवुड वैसा मेंटर मिल जाए लाइफ के स्टार्ट में ही तो थिंग्स आर वेरी सॉर्टेड। उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारे पास बहुत ऐसे टैलेंट्स हैं, तो उसको प्लीज फ्री में मत खर्च Waste कर करो, दो। हाँ। हाँ, डू समथिंग अबाउट इट। अभी तुमको इंटर्नशिप मिलेगी, तुम फ्री में बोलती रह जाओगी बस, यहाँ पे तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा। और सर वो आज भी उस रेडियो स्टेशन में वही आरजे हैं। सो ही वॉज वेरी राइट अबाउट दैट। उन्होंने कहा था हम तो कहीं नहीं जा रहे, तुमको तो नहीं मिलने वाली आरजे की जॉब, किसी मतलब दूसरे सिटी में मिल जाएगी, मुंबई में मुंबई तो में नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। हाँ। हाँ। सो आई टुक हिज वर्ड्स वेरी सीरियसली। मैंने रेडियो का भी नशा उतार दिया अपने सर से। उसके बाद 1 साल तो मुझे बस खुद के बारे में R&D करने में लग गया कि मुझे फिर चाहिए क्या। मैंने पढ़ाई की जर्नलिज्म की, वो मैं नहीं कर सकती। मेरा पैशन था रेडियो, अब वो भी मुझे नहीं करने मिल रहा है। Correct. तो उन्हीं मेंटर ने मुझे काफ़ी कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स दिए थे, और मैंने ऑडिशंस भी दिए, और 3 ही ऑडिशन में मुझे एक रोल भी मिल गया। आई हैव डन अ बिट ऑफ टीवी बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब। Okay. सर वहाँ पे वेटिंग पीरियड इतना था ना, सुबह 9 बजे का कॉल टाइम था, और जो सेट पे बुलाया गया वो रात के 9 बजे था। तो मैं जो इंसान हूँ, मुझमें पेशेंस लिटरली कम है, और एंगर थोड़ा उस वक्त तो और ज़्यादा था, बिकॉज आई वॉज अ टीनेजर। मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा, टेलीविजन इज़ नॉट फॉर मी, ये 9-9 घंटा वेट करना, आई एम नॉट डूइंग इट। लेकिन वो एक्टिंग, वो सेट, कैमराज, वो देख के अच्छा तो लगा। तो तब वही जोश था, जैसे आपने भुवन का भी स्टोरी सुना होगा कि वो ऑडिशन कैंसिल करके खुद के लिए कैसे कुछ कर सकते हैं। उसी फेज से मैं भी गुजर रही थी, और फिर तब मैंने यूट्यूब चैनल देखना शुरू किया, एंड वी ऑल नो वेस्ट में लिली सिंह वाज धूम मचाविंग। तो वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन लिया, बट फिर इंडिया में देखा ऐसे और कौन से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं। पता चला थोड़े और क्रिएटर्स हैं, बट वो सेम फॉर्मेट कर रहे थे जो लिली सिंह वहाँ पे कर रही है, दैट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड स्पीकिंग। आई सेड आई डोंट वांट टू स्पीक, क्योंकि ये मैं अलग कैसे दिखूंगी इसमें। सो रादर देन स्पीकिंग, आई जस्ट डिसाइडेड कि वो ही 5 थिंग्स मैं एक्ट करके दिखाऊंगी। लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो था सर। और स्कूल में मैंने एक थिएटर वर्कशॉप किया था, फिर वहीं से मैंने लिंक्स निकाले, फिर जस्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड ब्रिंग अ लिटिल मोर क्रिस्पीनेस टू माई एक्टिंग, मैंने और 3 थिएटर वर्कशॉप्स किए। एंड सरप्राइजिंगली आई वॉज गुड एट एक्टिंग ऑल्सो, जो मुझे वहाँ के मेंटर्स ने बताया। मेरे जैसे इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है सर, मैं कभी सामने से आपको आके नहीं बोल सकती कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ, आप मेरी एक्टिंग देखिए। खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए वो थिएटर वर्कशॉप किया, फिर मैंने खुद एडिटिंग सीखी, फिर मम्मी से, भाई से, सबसे थोड़े पैसे उधार लेके कैमरा लैपटॉप सब कुछ अरेंज किया, एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड। द थिंग दैट वर्कड फॉर मी हियर इज कि मुझे कभी स्क्रिप्ट राइटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कभी सेकंड पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मुझे आइडियाज़ दे कि ऐसा वीडियो बना, वैसा वीडियो बना। चैनल स्टार्ट करने के पहले मेरे पास 20 वीडियो के आइडियाज़ थे। अगेन ये थिएटर वर्कशॉप का ही एक सिखाया हुआ पैतरा था कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले 3-4 महीने का तो आपके पास रेडी होना चाहिए कि आप क्या क्या दिखा सकते हो वहाँ पे।
जब वो चीज़ शुरू कर दी फिर मैंने, तो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, लेकिन उस टाइप का ट्रैफिक नहीं आ रहा था जो मुझे एक्सपेक्टेड था पहले वीडियो से ही। आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसको ABCD सीखना नहीं पसंद है, मुझे डायरेक्टली स्पेलिंग लिखा पाइए। तो मैंने 1 साल पेशेंटली वीकली 2-2 वीडियोस डाले। पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया, मैं मास्टर्स कर रही थी तो उन्हें लगता था कि ये कैमरा और ये सब सर हम कॉलेज में हमारे Correct. लिए हाँ. बहुत आम बात थी, तो पेरेंट्स को कुछ ऐसे शक नहीं हुआ कि ये अजीब सा कुछ क्या कर रही है। 1 साल बाद थोड़ा फिर भनक लगी एंड एवरीवन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, बिकॉज़ ऑब्वियसली उनको भी लिंक फॉरवर्ड कहीं ना कहीं से हो गया। तो मैंने कहा कि इस चीज़ से रेवेन्यू आएगा, डोंट वरी। तो वही नॉर्मल पेरेंट्स वाले क्वेश्चन, इनका ऑफिस कहाँ है, तुम ऑफिस तो जाती नहीं, ये कैसा जॉब है, कौन है तुम्हारा बॉस? मैंने कहा बॉस हमारा यूट्यूब है। वो US में बैठा है। और सब फिजिकल बॉस तो कोई नहीं है। एंड देन उन्होंने बोला कि तुम ये करो, मना नहीं कर रहे, बट कुछ रियल जॉब करने की भी ज़रूरत है निहारिका। सो व्हाई डोंट यू टेक टीचिंग एज अ प्रोफेशन इन कॉलेज, जहाँ पे तुम पढ़ाई भी करो और वहाँ के बच्चों को तुम अपना ये वीडियोस भी दिखा सकती हो। बट सर आई एम नॉट अ पर्सन जो मल्टीटास्किंग में अच्छा है, तो मुझसे वो नहीं हो पाया। मैंने ऑनेस्टली उनको वो भी बोल दिया कि मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। इफ दिस थिंग डजंट हैपन इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई विल क्विट, और ये मेरा प्रॉमिस है। नाइस. उसी वक्त रेडियो स्टेशन से एक बहुत अच्छी जॉब आ गई थी, दे वर पेइंग वेल, और तब मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब से तो पैसे नहीं आए अभी तक, अब रेडियो ज्वाइन कर लेना चाहिए वापस एज प्रोड्यूसर और व्हाटएवर। तो मैंने रेडियो ज्वाइन किया। मैं 2 दिन गई वहाँ पे, यहाँ पे मैं 2 दिन जा रही हूँ, यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ रहे हैं। ये क्या खेल था मुझे समझ में नहीं आया, बट उस वक्त ऐसा लगा कि इसी वक्त मुझे एक डिसीजन लेना है, और फिर मैंने डिसीजन ले लिया। मैंने तीसरे दिन क्विट कर दिया। मेरा ओरिएंटेशन ये वो कुछ नहीं हुआ। वहाँ से मुझे कॉल आया, और ये रेडियो स्टेशन एक बड़े मीडिया हाउस का था। आई हैव बीन ब्लॉक्ड बाय देम, दे हैव 10 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स, रेडियो स्टेशंस एंड एवरीथिंग। एक फॉर्मल ईमेल आया, यू हैव बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम आर सो एंड सो कंपनी। हमारे किसी भी कंपनी में तुमको लाइफ में कभी जॉब नहीं मिलेगा। मतलब माँ कसम, अब तो रेडियो अब तो यूट्यूब चलाना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे आई कैन डिच दिस। रुको, तुम्हारा चैनल खरीदते हैं. हाँ, फिर हमने वो धीरे-धीरे वहाँ पे मैंने और मेहनत की, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। विदिन नो लाइक मैं गिन रही हूँ कि हाँ आज इतने एंड 100 के अपने आप हो गए। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज़ दैट दिस इज़ मेंट फॉर मी। और तब जब फर्स्ट चेक आया अच्छा खासा अमाउंट का, तो मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे दिखाया, मैंने ये बॉस ने भेजा है, और वो जहाँ भी है वहीं रहे, क्या बस था भेजते मिला? रहे। What was that amount? It was about 70,000 or something, That Not bad. which was not at all bad Not at all for bad, me. yeah. हाँ, So I क्योंकि mean, you mentioned कि भुवन जैसा ना, exactly आपका कहानी actually भुवन जैसा बहुत parallel है. हाँ, I have spent a lot of time with him and I've understood him, and like you mentioned, right, कि you know, audition दे के wait करने से अच्छा यार दुनिया के सामने audition दो, हाँ, and दुनिया रोज decide करेगी whether they are liking you or not हाँ, liking you, and you know, in the comment section आपकी कमाई हो रही है. Every comment is like they saying that listen, we like it and we want it more. So हाँ, आप अपनी पिक्चर नेक्स्ट पिक्चर कब रिलीज कर रही हो? जी। So when you are thinking about any character that you want to put out on your channel, what is the process that you go through? Is there any process to think about it? How do you make sure that क्या ये सिर्फ मेरे फैमिली का है, या कि क्या ये लाज ऑडियंस को रिलेटेबल होगा? It comes very naturally to me. That's the thing why I've been able to sustain myself on social media for so many years. ये बचपन से होता आया है। अगर हमारे घर पे कोई रिलेटिव्स आते हैं, किनका किसी का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड द मोमेंट दे लीव ना, एज अ किड आई हैव डन दिस, उनकी नकल करना घर पे। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी मींस Observation. व्हाट? क्या? सो व्हेन अ पर्सन इज एकदम जो कीन ऑब्जर्वर होता है ना, जो लोगों के बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, कुछ उनका वो अगर वो पकड़ लेता है, सर वो कुदरती है, इसमें कोई मेहनत लगती नहीं है मुझे। इसके लिए मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन इजी है। इसके लिए मैंने ये फील्ड चूज भी किया और मैं इसमें टिक भी गई। और मेरे फेवरेट एक्टर्स कभी ये शाहरुख खान, सलमान खान इसलिए नहीं रहे हैं, और जैसे सुनील ग्रोवर, कादर खान, ये सब लोग जॉनी ज्यादा लीवर. रहे हैं, जॉनी लीवर, क्योंकि ये कैरेक्टर्स में इस हिसाब से घुस जाते हैं, क्योंकि आप इनके हर रोल्स देखिए, वो कन्विंस कर लेंगे आपको कि ये वही हैं। आई हैव ऑलवेज चेज्ड पीपल लाइक देम, और ये शायद इनका थोड़ा बैकग्राउंड थिएटर के रिलेटेड है। मनोज बाजपेयी, सो मेनी अदर एक्टर्स। तो जब उनको देखते हैं ना, तो उनसे यही सीखने का मन करता है कि ये कैरेक्टर में कैसे घुसते हैं। The reason why I could not stop myself from liking and clicking on that share button and sharing to 4-5 of my friends who I think will relate with that content is because the soul that comes out in that content, and
there you are not Niharika, you are that That Mataji, or you are, whichever that Bua Hmm. character that you are playing. So in the जैसे माता जी का आपका सबसे किसी से भी बात हाँ करो, like I was talking to bunch of people and we've just somebody who just joined recently, an intern, तो उसको बोला निहारिका, all of a sudden अरे माता जी का, that's like the reaction that I have seen Yeah. across people, and I think that is one thing that has really picked up. So was that something that you absorbed in someone, or how did that character come to life? एंड इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब कोई कैरेक्टर बनाते हो, एक ऑब्जर्व किया, हाउ डू यू डिसाइड कि हाँ यार इस कैरेक्टर को वापस लेके आते रहना चाहिए? इट्स वेरी फनी. पीपल मस्ट हैव अज्यूम्ड कि जो माताजी कैरेक्टर वो मेरी मॉम से ही प्रेरित है, Correct. विच इज अ फॉल्स थिंग. Yeah. मेरी मम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है. बट द रियलिटी इज मेजोरिटी ऑफ इंडियन मॉम्स आर नॉट लाइक हर. दे आर लाइक दिस कैरेक्टर दैट आई एम Yes. प्लेइंग. Yes. और ये कैरेक्टर्स मेरी नेबर थी, मेरी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, Yeah, उनके पेरेंट्स, उनकी मॉम्स हैं. तो वो मैंने बचपन से देखा है और मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मी थोड़ी हटके है, बट ये मम्मियाँ कॉमन है. तो फिर मैंने वही सोचा था कि हमें मास को अट्रैक्ट करना है, तो Relatable way. हाँ, तो जो ज्यादा रिलेटेबल है वही डालना पड़ेगा. जैसी मेरी मॉम है वो हम नहीं डाल सकते. Yeah. बट वो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ थिंग्स व्हाट माय मॉम यूज्ड टू टेल मी. काले कपड़े पे बोलती थी, ऐसे ऐसे बोलती थी. तो मैंने बस जो मेरे साथ घर में होता था वर्ड्स उनके थे, बस जो तरीका बोलने का था वो एक दूसरी जो थोड़ी ज्यादा स्ट्रिक्ट मॉम है उनका था. Correct. एंड फॉलो अप क्वेश्चन के लिए जो बहुत सारे Like बाकी हाँ. हाँ कैरेक्टर्स हैं. सो लॉट ऑफ माय वीडियोस इनिशियली वर बेस्ड ऑन मैरिजेस एंड स्पेसिफिकली ब्राइड्स. नाउ द क्वेश्चन वाज, पीपल यूज्ड टू आस्क मी, तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तुमको इतना कहाँ से आइडिया लग रहा है शादियों का कि तुम इतना मतलब बैंग ऑन कैसे बना रही हो वीडियो. I said my career, I started my YouTube channel after these two very big personal weddings that have been a part of. One was my brother's and one was my best friend's. And I was a part of I was in the wedding. Yeah. अब मेरा दिमाग में इतना मतलब कंटेंट था ना इन दो शादियों का कि वो मेरा 2-3 साल चला है उसमें YouTube. तो मैं अपनी भाभी से बात कर रही हूँ कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे ब्राइड्स होने के. ब्राइड जब आप बनी आपके क्या एक्सपीरियंसेस. फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो ब्राइड बनी, तो वो किस टाइप की ब्राइड थी. देन टर्न आउट नॉट एवरीवन हैज द सेम एक्सपीरियंस. सब अलग अलग टाइप की ब्राइड हैं. तो ये चीज मैंने फिर डाल दी, टाइप्स ऑफ ब्राइड, जो यूट्यूब पे उस टाइम के पहले कभी किसी ने नहीं किया था. टाइप्स ऑफ वुमेन इन पार्लर, ये उसी वक्त का था व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू पार्लर बिफोर माय ब्रदर्स वेडिंग. वहां पे अलग अलग टाइप के कैरेक्टर आ रहे हैं. तो ये जो रियल लाइफ में देख रही हूँ मैं, एंड लाइक आई सेड आई हैव बीन एन ऑब्जर्वर, मतलब वो है मुझ में, आप वो मुझसे निकाल नहीं सकते. वो फीचर मेरा, वो मेरा कैरेक्टरिस्टिक है. वो देखते देखते मैं लिखते गई थी. मैंने आपको कहा था यूट्यूब चालू करने से पहले मैंने इतने टॉपिक्स लिखे हुए थे अपने. Correct. तो मुझे बस अब एक पार्लर अरेंज करना था, एक सैलून अरेंज करना था, ब्राइड का सेटअप अरेंज करना था कि मेरे वीडियोस फिर स्मूथली बनते जाएं, क्योंकि थोड़ा रियलिटी टच मुझे उसमें देना था कि मैं घर पे ही सैलून नहीं बना सकती. Correct. मेहनत सिर्फ उसी में लगती है कि उनका आउटर अपीयरेंस कैसे करना है. एंड वो भी ऑब्जर्वेशन हेल्प कर देता है उस चीज़ को बाहर लाने में, कि वो कैसे बाल बनाते हैं, उनका हाथ कैसे होता है. बहुत लोग बोलते हैं कि मेकअप लगाया करो. घर पे नहीं मेकअप लगाती मम्मियाँ. सैलून में औरतें कुछ है उनका टिपिकल रेड लिपस्टिक ही उनको लगानी है, क्योंकि दे वांट टू लाइक स्टैंड आउट कि हाँ हम हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करने में हेल्प करती हैं. प्लस विद द थिएटर वर्कशॉप्स वो आपको यही चीज़ें सिखाते हैं कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना और अच्छा दिखना नहीं है. आप अपना प्रोनाउंसिएशन, हमारे जो एक सर थे उन्होंने हमारी हिंदी इस लेवल पे सुधारी है. वो बोलते थे तुमको हिंदी में एक्टिंग करनी है और तुमको हिंदी तो बोलने आती ही नहीं है. तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन तो भी को तुम बी बोलते हो, करते हैं बोलते हो. तो तुम पहले ये सब सीखो, एक्टिंग बहुत बाद में आ जाएगी अगर आनी होगी तो. तो किसी भी क्रिएटर का जब आप ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को लेके इतने लंबे टाइम तक जाते हो, एक तो मैं आपके तरफ से एज अ क्रिएटर कि भाई मैं कब तक यही माता जी करती रहूं वाला फटीग, और एक ऑडियंस को फटीग कि मैं कितने दिन तक ये उसको देखूं. तो हाउ डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? With mom character, what I realized is कि ऑडियंस इज नेवर गोइंग टू गेट बोर्ड. Yeah. क्योंकि आप 15 साल के हो जाएं या आप 50 साल के हो जाएं, आपका मम्मी के साथ तो तू Equation मैंने same रहेगा. चलता रहेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा.
तो और उस टाइप की ऑडियंस आ गई है मेरे चैनल पे। अब बहुत लोग होंगे जो ये चीज को नहीं एंजॉय करते होंगे कि क्या वही मम्मी आ गई वापस। तो rather than worrying about them, I want to worry about people who are coming to my channel, watching my videos and putting down a Yeah. comment, making it sure कि हमने देखा तो है। ऑडियंस भी रिप्लेनिश हो रहा है। हाँ, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो। अब उसमें लाइक आई सेड 2 ही चीज़ होती हैं। बहुत लोग आके बोल देते हैं कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा होता है, और बहुत लोग बोलते हैं ऐसा तो कहीं नहीं होता, व्हिच इज़ गुड फॉर मी। मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा है, आपके साथ नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। आप प्लीज़ इधर लिख के जाओ आपके साथ नहीं होता है। ऑल आई वांट इज़ फॉर यू टू Engagement. हाँ, प्लीज़। तो ये चीज़ भी सीख ली है। सो निहारिका, आपने ना ये एक चीज मेरे जब when I was of course I know you for a long time and I have seen your evolution and also जब किसी भी क्रिएटर का देखते हैं तो हम ये जब कंटेंट बनाते हैं कि मैं मेरे एक सर्टेन ऑडियंस के लिए रिलेटेबल कंटेंट बनाती हूँ। अब वो जो रिलेटेबल शब्द का जो डेफिनेशन है वो ही इतना फ्रैगमेंट हो गया है। जो 20 साल की लड़की होगी जिसने आपको देखना चालू किया होगा वो आज 30 साल की हो गई है। जी। क्या वो आज भी उसके लिए उतना ही रिलेटेबल है? बिजन अब कैसा हो गया है ना, इफ यू लुक एट द कमेंट सेक्शन, उसमें या तो कोई आपसे अग्री कर रहा है या तो डिसअग्री कर रहा है। हाँ. बट इन बोथ द केसेस यू आर विनिंग एज अ कंटेंट Yeah, क्रिएटर, yeah, totally. क्योंकि कमेंट तो आ ही रहे हैं। करेक्ट। सो दिस थिंग हैज डेफिनेटली चेंज। मेरी थिंकिंग जो है, मैं तो अपना वीडियो उस हिसाब से बनाऊंगी, बिकॉज इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो अगेंस्ट व्हाट आई फील एज अ पर्सन इज बेसिकली नॉट डिचिंग माई आर्ट, बट वो एक रिस्क लेना हो जाएगा। एक करंट एग्जाम्पल, मैंने देसी मॉम इन हर डाउटिंग फेज ये एक रील डाली जिसमें मम्मी डाउट कर रही है अपनी बेटी पे कि इसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, और बार बार उसको टोक रही है। हाँ। कि किससे फोन पे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो आज, मतलब सलवार सूट क्यों पहन लिया है, किसी से मिलने जा रही है क्या, किसी से। ये चीजें हमारे साथ हुई है रियल लाइफ में Yeah. व्हेन वी वर इन आवर Teen. 20s एंड हमने डेटिंग एक्चुअली स्टार्ट की थी, जो मेरा आज हम्म। पति है। तो मम्मियों को ये समझ में आता है, लेकिन कैसे जब बोला ना निहारिका, मेरा पति है आज. हाँ, मतलब एक ही इंसान है गाइस। तो ये चीज इतनी रिलेटेबल है, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से डाला था कि इसमें तो 100% मुझे वो रिलेटेबल वाला मिलेगा। हाँ। बट इट्स नॉट लाइक आई वाज शॉक्ड, आई वाज नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर इट। कमेंट सेक्शन में देखा जहाँ पे बहुत लड़कियां ऐसे भी बोल रही हैं कि बाप रे, थैंक गॉड शी इज नॉट माई मदर, थैंक गॉड शी इज नॉट माई मदर। तो अब ये 2 टाइप के लोग हैं। बन गए, राइट. अब ऐसी लड़कियां भी हैं जो ये चीज सहन नहीं करती हैं, ओपनली इसको बोलती हैं कि भाई ये टॉक्सिसिटी है। एक तो टॉक्सिसिटी आ गया है अपने लाइफ में, विच इज नाइस, एंड लोग ओपनली उसको कॉल आउट करते हैं, विच इज ऑल्सो नाइस। तो इसमें मुझे कुछ ऐसे ऑफेंडेड फील नहीं हुआ कि अरे तुम मेरे कंटेंट से रिलेट नहीं कर रही हो, ऐसे कैसे। इट्स नाइस, क्योंकि मेरा जो दूसरा कंटेंट था जो मैंने उसके थोड़े अगेंस्ट डाला इज अ मॉम विच इज केयरिंग फॉर हर डॉटर व्हेन शी इज ऑन हर पीरियड्स। उसमें भी सर 2 टाइप के लोग आ गए। मुझे तो ऐसा लगता था कि मम्मियां तो केयर ही करती हैं लड़कियों की, मतलब जो बेसिकली बीमार है या उसकी तबीयत खराब है। उसमें भी एक टाइप की लड़कियां बोल रही हैं, हाँ मेरी मम्मी भी ऐसी, हाँ मेरी मम्मी। एक टाइप की लड़कियां बोल रही हैं, काश मेरी मम्मी भी ऐसी होती। कोई बोल रहा है ये AI जनरेटेड मम्मी, ऐसी मम्मी तो होती ही नहीं है। सो इट्स लाइक यू जस्ट हैव टू पुट आउट द कंटेंट। अब जैसे भी टाइप के लोग होंगे, अग्रीमेंट वाले कमेंट्स भी आ जाएंगे, डिसएग्रीमेंट वाले भी आ जाएंगे। तो अब हो सकता है कि बिकॉज यूट्यूब का भी पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है, 890 मिलियन लोग इंडिया में यूट्यूब रोज आधे घंटे के लिए देखते हैं। ये नंबर है, हाँ। मतलब ये नंबर 1 बिलियन हो जाएगा 1 साल के अंदर। 100 करोड़ लोग इंडिया में यूट्यूब देखेंगे रोज आधे घंटे के लिए। तो हो सकता है कि आपका नेक्स्ट एनालिटिक्स में डेटा ऐसा दिखे कि यूपी के बहुत सारे शहर, बिहार के बहुत सारे शहर, टियर 2 तो बहुत कंज्यूम कर रहे हैं सर, जहाँ के बच्चे अभी भी उस टाइप की मॉम से रिलेट करते हैं, वो आपके ऑडियंस बनेंगे। इट्स अ प्लस पॉइंट दैट आई विल स्टिक टू दिस एंड माय ऑडियंस विल फाइंड मी। करेक्ट। दैट आल्सो इज a confidence, it's not arrogance. यहाँ economy भी बनेगी. So it is so here what I want to tell, and for the young content creators who are watching it, is please do not hesitate to make content in your mother tongue, your local language, your dialect. सो निहारिका, आपने लॉन्ग फॉर्म में जो स्केच करते हो 12-15 मिनट के करते हो, और अभी नाउ देयर आर नेक्स्ट न्यू वेव ऑफ क्रिएटर्स दैट आर ऑन इंस्टाग्राम जो ऐसे स्किट्स कैरेक्टर्स के साथ, जैसे मॉम वाले कैरेक्टर्स 1-1 मिनट में करते हैं, और आप भी इंस्टा में भी करते हो शॉर्ट फॉर्म। व्हाई वुड समबडी वांट टू स्पेंड 12 मिनट और 13 मिनट टू वॉच द सिमिलर स्टफ व्हेन आई एम गेटिंग दैट इन द 1 मिनट? व्हाट हैज बीन योर ऑब्जर्वेशन, बिकॉज आप ये दोनों क्रिएट करती हो, राइट?
एज ऑडियंस पहले बात करती हूँ. व्हेन आई सिट टू ईट माई फूड और समथिंग, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु डोंट स्क्रॉल फोन. रील. मैं टीवी पे कुछ लगा दूं, वो 12-15 मिनट चल जाए, मेरा मील खत्म होने तक आई एम हैप्पी. या और वही चीज जब आप ट्रैवल कर रहे हो या ऐसे ही डूम स्क्रॉल कर रहे हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, तब के लिए फोन ठीक है. बट लाइक मनीष सर हैज ऑल्सो सेड, लॉन्ग फॉर्मेट तो कहीं जाने नहीं वाला है. वो आया था, वो है, वो रहेगा. सो दैट वॉज वन थिंग इवन आई रियलाइज्ड, क्योंकि आज भी जब मैंने इतने गैप के बाद, प्रॉबेबली 1 साल के बाद एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले. मैं उसका कमेंट पढ़ूंगा. किसी ने लिखा है 1st January अपलोड आफ्टर 4 months, सिस्टर्स न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक्टिवेटेड. ये किसी ने कमेंट किया हाँ. हुआ वीडियो में. विजय प्रिंट करके लाया कमेंट. लवली. और ये 4 months के पहले का भी जो वीडियो था वो कुछ खास नहीं था, वो ऐसे ही बस फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द चैनल अलाइव ऐसे ही डाल दिया था कि YouTube वाले चाचा मेरे को भूल ना हाँ, जाए. मेरे को ब्लॉग ना भूल ना जाए. तो थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा अच्छा कंटेंट लेके. तो अब जब ये लोग देख रहे हैं, एंड ग्राफ की भी बात, व्हेन दे आर अप्रिशिएटिंग, अरे एंडिंग में मजा आ गया. मतलब देखा है उन्होंने. सो आई वांटेड टू कीप दैट, कि मैं कुछ अगर इतने टाइम के बाद डाल रही हूँ तो कुछ ऐसा डालूं जो वर्थ हो उनका टाइम. And that was very evident itself that people still watch your 15 to 20 minutes का video if it is very entertaining. जैसे हमने बात की, एक अगर आपने अपनी ऑडियंस एक कल्ट बना लिया अपना ग्रुप, सो दे आर तो नॉट गोइंग एनीवेयर. इनफैक्ट दे आर द वंस हु पुल्ड मी. आई वाज डेड ऑन यूट्यूब. दे केप्ट कमेंटिंग, व्हेन आर यू मेकिंग वीडियोस. इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी वीडियो कब बनाएगी, इधर बना रही है, उधर कब आएगी. आ रही हूँ. इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अब इतनी बनती है एज अ क्रिएटर कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डाल सकूं जो 15 to 20 मिनट्स के विंडो में फिट बैठता हो और एकदम धमाकेदार एंटरटेनिंग हो. Yeah. I have a question here for you. When you are creating a long form versus when you are creating a short form, वीडियो का more or less content का टाइप और जॉनर सेम ही है. प्रोसेस क्या फर्क रहता है जब आप शॉर्ट फॉर्म के लिए बनाते हो और लॉन्ग फॉर्म के लिए बनाते हो? टाइटल भी सेम है. आई टेल यू दैट. मुझे ये चीज लॉकडाउन के बाद आई स्टार्टेड बिकमिंग एक्सट्रीमली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि टिकटॉक बैन हुआ, अब सब इंस्टाग्राम पे आ गया, अब यहाँ पे रेस चालू हो गई है. नाउ व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग, जब मैं खुद के कंटेंट थोड़े टाइम के बाद जब मैं डालने लगी, मेरे कमेंट्स में आ रहा है कि अरे यू हैव कॉपीड सो एंड सो क्रिएटर्स कंटेंट. मैं सोच रहा हूँ ये क्रिएटर का तो कंटेंट मैंने देखा ही नहीं, कॉपी तो दूर की बात है, नाम भी नहीं सुना. हाँ, फॉर एग्जांपल. या फिर हुआ क्या, मैंने ये जो क्रिएटर्स अब आए हैं लॉकडाउन के बाद इंस्टाग्राम पे, ये वो चीज अब कर रहे हैं जो मैंने कुछ सालों पहले यूट्यूब पे सब करके मेरा हो गया है. करेक्ट. और उसी का सेम चीज वो यहाँ पे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ब्राइड में एक ब्राइड उठा के आपने 1 मिनट में यहाँ पे दिखा दी, तो लोगों को लग रहा है कि अब आप उसमें आपके 5 रील निकल गए, वर्सेस व्हेन यू डू दिस इन अ लाइक अ कंप्लीट फॉर्मेट, वो आपका एक 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो बन रहा है. तो जब मैंने ये कमेंट पढ़ा, अगेन आई हैव लर्न दिस अ वेरी गुड थिंग फॉर माय लाइफ, मैं ऑफेंड नहीं होती. जब मुझे किसी ने बोला ना आप कॉपी कर रहे हो, मैं गई उस इंसान का प्रोफाइल मैंने देखा, फिर मैंने उसको फॉलो किया. आई एम टॉकिंग अबाउट आरजे करिश्मा हियर. अच्छा. आई फॉलोड हर, आई लव्ड हर कंटेंट. मैंने बोला ठीक है, मदर एंड डॉटर मेरी प्रॉपर्टी कब से बन गई कि सिर्फ मैं ही माँ बेटी पे कंटेंट बनाऊंगी? ये भी बना सकती है. करेक्ट. So that's what I'm saying. When I create a full length, मैंने ये टॉपिक जो अभी मैंने इंस्टाग्राम रील पे डाली थी, देसी मॉम इन हर डाउटिंग फेस, वो सेम चीज हमने यूट्यूब वीडियो बनाई है विच इज ऑफ 15 मिनट्स. अच्छा. अब आप इसमें पूछोगे कि इसमें प्रोसेस क्या है. सो व्हेन इट्स अ रील ऑफ 1 minute और प्रॉबेबली 1.30, उसमें सिर्फ मॉम का ही पीओवी है कि मम्मी क्या बोल रही है वो. अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है, तो मैंने इसमें डॉटर इन्वॉल्व कर दी, डॉटर का कैरेक्टर. अब इसमें डॉटर के रिस्पॉन्सेज हैं विच इज अगेन वो थोड़ा और लंबा चल गया. और इंस्टाग्राम रील्स पे ये चीज तो ये तो खैर बहुत पहले ही क्रैक कर ली थी कि आप यहाँ वहां की बातें नहीं कर सकते. मुझे अगर कुछ बोलना है ना, कुछ पंच मारना है तो तुरंत मारना पड़ेगा. फर्स्ट 5 to 10 seconds ऑफ अ रील is extremely important to grab somebody's attention. 3 सेकंड आपका सबसे 3 सेकंड सबसे अच्छा जो आपका पंच लाइन है वो आप शुरू में रख दो, या कुछ क्यूरोसिटी क्रिएट कर दो, या जो भी है, तो लोग रहेंगे आपके प्रोफाइल पे, पूरा वीडियो देखेंगे. तो ये चीज क्रैक कर ली. हर वीडियो में नहीं हो पाता, जिसमें होता है वो चल जाती हैं. तो जब YouTube बनाते हैं तो उसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें थोड़े और लाइंस एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, थोड़ा उसमें बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम काम चला सकते हैं, जो हम रील में नहीं कर सकते. रील इज एकदम मतलब कट चॉप
कुछ उसमें एक्स्ट्रा नहीं है. Hmm. It's like a very like a Ruthless. refined Hmm. process of one lengthy YouTube video. Hmm. तो ये चीज हो जाती है. यहाँ पे हम कैरेक्टर्स मल्टीपल डालते ही नहीं है, छोटे छोटे. अगर स्केच की बात आ जाती है, जो आप कह रहे हो 1 minute स्केच है, विच इज अ लवली कॉन्सेप्ट. आई पर्सनली लव्ड इट एंड शायद मैं करूं भी इन फ्यूचर, आई डोंट नो. Hmm. लेकिन फिलहाल मेरे लिए वो करना इसके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि अगेन आई एम समवन हु इज लाइक अ ओल्ड स्कूल Hmm. क्रिएटिव पर्सन, जिसको ठहराव पसंद है, थोड़ा फेस और बॉडी भी इन्वॉल्व करना है एक्टिंग में. अब वो भी हो रहा है कि नहीं पता नहीं. मैंने 1-2 ही देखा है, ऐसे ज्यादा तो देखा भी नहीं अभी तक वो रील्स वाला स्केच. बट वो चल रहा है, दैट मीन्स इट हैज पोटेंशियल टू ग्रो ऑल्सो. और पैसा कैसा है लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म में? डेफिनेटली विजय, लॉन्ग फॉर्म में इट्स लाइक आपको खुद से अगर ब्रांड नहीं भी आ रहा है तो यूट्यूब आपको पैसा पैसा देगा, दे रहा है, करेक्ट. विच इज अ गुड थिंग. तो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ब्रांड, वो आएगा कि नहीं आएगा. हम्म. बाकी ब्रांड के लिए तो आपको नंबर्स चाहिए ही चाहिए. बड़ा ब्रांड बड़े नंबर्स को अप्रोच करता है. एंड लाइक लेकिन वो निहारिका चेंज होगा अब वो चेंज होगा. अच्छा, वो हो भी रहा है हाँ. सर, हमने तो Yeah. एक्सपीरियंस भी किया है करेक्ट. कि बड़ा ब्रांड सो अगर फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपए में एक क्रिएटर को अप्रोच कर रहे हैं, तो उनका दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है. वो 5 छोटे क्रिएटर्स को जाके करेक्ट. 10 एग्जैक्टली. रुपए एक क्रिएटर्स Correct. को दे देंगे और वैसा हो जाएगा, विच इज हैपनिंग. When you look at comparing the long form and short Hmm. form, जब आप लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंपेयर करते हो और सक्सेस अगर आपको डिफाइन करना है जी. कि ये वीडियो सही गया या ये नहीं सही गया, लॉन्ग फॉर्म में क्या मैट्रिक्स देखते हो और शॉर्ट फॉर्म में क्या मैट्रिक्स देखते हो? सो लॉन्ग फॉर्म में आपको ऑडियंस बता देगी कमेंट में इफ दे हैव वॉच्ड इट और नॉट. लाइक आई सेड, फॉर मी व्हेन दे से कि यार क्लाइमैक्स सॉलिड था, दे हैव वॉच्ड माय फुल वीडियो. प्लस उसमें मुझे समझ में भी आता है कि मुझे उसको थोड़ा क्रिस्पी रखना है. आई डोंट नीड टू लाइक शो अननेसेसरी थिंग्स. जहाँ पे वो ड्रॉप हो जाता है मतलब वो बोर होके निकल चुके हैं. मतलब एवीडी भी तो डिफाइन कर देगा ना. हाँ, तो ये चीज से तो डेफिनेटली समझ में आता है. प्लस अगर वो उस कैरेक्टर के फैन बन गए हैं तो भी आप ये समझ जाइए कि दैट यू हैव मेड अ वे टू ऑडियंसेस हार्ट थ्रू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर. वो उस कैरेक्टर को हेट करें या लाइक करें. तो उसको रूट करने जरूर है. हाँ जी. कमिंग टू रूट, अगर उस कैरेक्टर को वो हेट भी करें, जैसे मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया था अभी ऑफ घमंडी बेटी. So people were telling me, God, we started hating her. Like acting so good, we started hating her. Yeah. Which is a good thing for me. Short format पे वही है कि थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड होने को. और हर रील एग्जैक्टली वैसे ही क्रैक हो पाएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. लेकिन वो ट्राई करते रहना पड़ेगा आपको. So Niharika, you said observation is one thing, that you said that really helps you come up with these characters. उसके अलावा और क्या चीजें हैं? I don't know how to explain this, but when I write a video, I actually see it happening. अच्छा, visualize. हाँ, अब आप इसको कैसे सेंटेंस में फॉर्म करें? क्रिएटिव फ्लो इज द वर्ड. यस, क्रिएटिव फ्लो की अपना मतलब एक. तो जब हम डायलॉग्स भी और कई बार इम्प्रोवाइजेशन में ऐसा होता है कि आपने लिखा कुछ है और उसके टोटली कुछ अलग ही आप शूट कर रहे हो. विच अगेन वो आपको उस मोमेंट में रियलाइज होता है कि अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी या मैं कुछ ऐसा बस बिना बोले अगर आपको कुछ कन्वे करना है तो आप कैसे करोगे. मैं अपने वीडियोस में बहुत बार यही ट्राई करती हूँ. लोग बोलते हैं कि जैसे जो शूट कर रहा होता है वीडियोग्राफर बोलेगा यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं. आई सेड बॉडी. मैंने बोला था ना, द वे यू वेयर योर क्लोथ्स, द वे यू वेयर योर मेकअप, मेरे एक्सप्रेशंस पिक करना भाई. हाथ है ऐसे कुछ ऐसे करते हैं. अच्छा, मतलब हमेशा मुंह से बोलना जरूरी नहीं है. Correct. कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बहुत लोग करते हैं, उनको समझ में आता है. अ सिंपल नॉड डज मीन दैट यू हैव एक्नॉलेज्ड समथिंग. यू डोंट हैव टू से यस यस आई हैव एक्नॉलेज्ड. मतलब तो ये सब चीजें अगेन इट कम्स फ्रॉम लर्निंग द आर्ट ऑफ एक्टिंग फ्रॉम दीज अमेजिंग पीपल इन द थिएटर वर्कशॉप, जो आपको सिर्फ एक्टिंग करना नहीं सिखा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट भी कैसे करना है, इसको प्रोड्यूस भी आप कैसे करो, आप सेट कैसे बनाओ, बहुत सारी चीजें उसमें सिखा देते हैं. तो ये मतलब इन टेक्निकल टर्म्स दे कॉल इट विजुअलाइजिंग डिजाइन थिंकिंग. हाँ जी. टू दिस थॉट अबाउट कि यार मैं इतने साल से हूँ एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु स्टार्टेड बाय योर टाइम. काफी लोग बहुत आगे निकल गए होंगे इन द वर्ल्ड टर्म. हैव यू एवर कंपेयर्ड विद द क्रिएटर्स एंड हैज दैट बॉदर्ड यू, दैट कंपैरिजन? डेफिनेटली आई हैव कंपेयर्ड. और मेरे यूट्यूब में टचवुड इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्पेस, क्योंकि मैं आज तक इट्स डिफिकल्ट टू बिलीव और नॉट, आई डोंट नो, मैं ट्रोल हुई नहीं हूँ सोशल मीडिया पे. दैट्स गुड, टचवुड, दैट्स नाइस. और मेरे सब्सक्राइबर्स इतने मैच्योर्ड हैं और मुझे यही लगता है कि जैसे आप होंगे ना, फिर आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स वैसे ही होंगे.
मेरे कमेंट में सर नॉर्मल ऐसे वाओ लवली वीडियो ये वो सिर्फ ये बातें नहीं होती हैं, मीनिंगफुल पैराग्राफ वाली बातें होती हैं विच आज भी 10 years I've completed probably, आज भी वैसी बातें होती हैं which shows kind of people who have attached themselves to me and my work. कॉमेडी ही दिखा रही हूँ मैंने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट रखा नहीं है, बट समहाउ दीज पीपल आर सो मैच्योर सो वाइज जो उनके शब्दों में दिखता है। निहारिका एक और चीज बताओ, एक तो ये काम हो गया जी कि अपने को यूट्यूब बनाना है, वीडियोस डालने हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है, राइट? एक ये सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है द क्रिएटिव पर्सन इनसाइड यू। सो उस क्रिएटिव पर्सन का हंगर सेटिस्फाई हुआ है? नहीं, द मोटिव ऑफ एंटरिंग दिस क्रिएटिव स्पेस इज दैट ओनली, मुझे कभी कंटेंट क्रिएटर बनना नहीं था सर। जब मैं कॉलेज में थी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मुझे हमेशा से मूवी डायरेक्ट करनी थी, मुझे एक्टर भी नहीं बनना था। अब बोले, अब बात करेंगे हम लोग, बोलो। मुझे डायरेक्शन में ही इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जब मेरा जो फर्स्ट वर्कशॉप था वहाँ पे मैंने बोला भी था कि मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे डायरेक्शन सीखना है। आज भी जो मेरे वीडियोग्राफर्स हैं जो मेरे साथ, आदित्य हैज स्पेंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम विद मी, वो ऐसे ही बोलता है लाइक आप ऐसे कैसे, मतलब खुद सोच लेते हो और फिर वो हो जाता है वीडियो में। आई सेड सी अगेन आई डोंट नो, इट्स गिवन प्रोबेबली बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जब मैं लिखती हूँ तो मैं देखती हूँ वो चीज होते हुए, एंड इट टेक्स अ वेरी क्रेजी एंड क्रिएटिव माइंड कि आप सोने से पहले भी आप अपने वीडियो के बारे में सोच रहे हो, फिर ऐसा बोल देंगे, फिर ये होगा, फिर मम्मी आएगी किचन से ऐसा बोल देगी। एक दिन पहले कंटेंट रेडी होता है, इट्स अब जाके वो स्टेट आ गया है। बट जो आपने बोला वो मेरा हंगर तो सेटिस्फाई दूर दूर तक नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बनानी है मूवी और मैं बनाऊंगी एक दिन डेफिनेटली। कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट इज सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली। और बुरा एक फेज था जब डेफिनेटली ऐसा बुरा लगा था कि भाई जो हमसे थोड़े पीछे हैं, और कमेंट में लोग बोल के जा रहे हैं कि वो इतने ओवररेटेड हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो आज ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो मूवीज, आप क्यों नहीं कर रहे हो शोज। आई सेड मुझ पे डिपेंड होता तो मैं डेफिनेटली कर लेती, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। शुरू में बुरा लगा, बट देन आई डोंट नो आई शुड स्पीक अबाउट इट नॉट। एक स्पिरिचुअलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एंटर करते हो तो आप एक्सेप्ट करते हो कि ये आपका समय नहीं है। हाथ पैर चला लो, सर फोड़ लो, अपना फोड़ दो, किसी और का फोड़ दो, आपका नहीं होगा तो आपका नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो। एंड आई एम लाइक अ बिग, उस वक्त मैंने महाभारत पढ़ना शुरू की, फिर वही रियलाइज हुआ कि अर्जुन सच अ ग्रेट आर्चर ऑफ हिज टाइम, उनको कितना उनका स्ट्रगल पीरियड देखिए आप। सो आई जस्ट मतलब ओके, सो दिस इज लाइफ। जो मैं प्लान कर रही हूँ वो ही एग्जैक्टली हो जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, तब तो कोई मेरे लिए सीखने के लिए कुछ है नहीं। बट आई गेस जो चीज मुझे सीखनी थी और मेरे अंदर नहीं थी, पेशेंस, वो मेरा सबसे बड़ा टेस्टिंग टाइम यही था। तो मैंने इसको इस चीज से लिया, रादर देन बिकमिंग बिटर अबाउट कि लोग आगे चले गए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ और मैं रोते रहूं बैठ के। मैंने बोला ठीक है, वो आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो डिजर्व करते होंगे, उनका प्रारब्ध है, उनका जो भी है कर्म फल वो अपना भुगत रहे हैं, वेरी नाइस। मुझे अगर अपना पैशन जिंदा रखना है, इफ I want to achieve what I really want to achieve, I'll have to keep doing this, improvising it, learning, unlearning, relearning everything, doing everything here only. But I cannot quit. मेरा टाइम आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो भी भगवान की कृपा से जितना मिला है वो बहुत ही अच्छा है। इसके पहले मेरे पास ये सब कुछ भी नहीं था। So if I really compare, मैंने बहुत कुछ कमाया ही है। तो बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आपको पता भी नहीं है और वो लोग मैजिक क्रिएट कर रहे हैं निहारिका। और निहारिका, दुनिया इतना बड़ा है ना कि आपको आपके उस वो 10 लाख लोग 20 लाख लोग मिल जाएंगे और आप मजे करो उनके साथ। डेफिनेटली। तो नॉट नेसेसरीली दैट यू हैव टू रिलीज इट इन थिएटर, एंड ऐसे भी वो पैसे नहीं बनाते सारे। नहीं, है ना? वाला तो इससे अच्छा यूट्यूब में डालो, लोग सुपर थैंक्स भी देंगे, मोनेटाइजेशन भी आएगा, एक आधा ब्रांड भी आके इंटीग्रेट हो जाएगा, पैसा ही पैसा। So that's great. ये चीज वही हुई थी सर। एक तो लाइक आई सेड 2020 में कुछ ऐसा हुआ था, बेसिकली मेरे पापा का बिजनेस पूरा शट हो गया, उन पे बहुत बड़ा डेट आ गया था। 2022 नो दिस वाज बिफोर लॉकडाउन, एंड दिस इज आल्सो व्हेन ही कंप्लीटली लाइक ही फेल इल, उनका हेल्थ वेंट फॉर अ टॉस एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ मंथ। तो उस वक्त जितना जो मेरा भी कमाया हुआ फाइनेंस पूरा था वो उसमें चला गया, एंड टू पे ऑफ द डेट। तो जितना कमाया था वो थोड़े साल तक डेट पे करने में ही चला गया। तो उस वजह से जो फाइनेंशियल सिचुएशन उस वक्त थी, दैट डिडंट अलाउ मी कि मैं खुद से कुछ प्रोड्यूस कर पाऊँ। बट देयर वाज अ स्क्रिप्ट जो मुझे एक
थर्ड पर्सन ने लाके दी थी एंड इट वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट ऑफ दैट टाइम. हमने इनफैक्ट जो मेरा उस वक्त मैनेजिंग मीडिया हाउस था, हमने उनको अप्रोच भी किया कि आप कहीं से प्रोडक्शन इसका मैनेज कर सकते हैं क्या, कोई फोन ब्रांड. तो वो बंदा चला गया कहीं और, ही इज डूइंग हिज ओन वर्क, आई एम डूइंग माय ओन. तो ये चीज़ हमने एक बार ट्राई की थी एंड बहुत डेलिबरेट ट्राई किया था, वो नहीं हुई. तो उस वजह से थोड़ा हार्ट ब्रेक सबका ही हो गया और हाँ. सबने लाइक ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं अभी. मैंने बोला ठीक है, जब करेंगे तो अच्छा ही करेंगे. End of the day, when you fall on your bed, Yeah. you should get sleep Hmm. and guilt free. If you achieve that, I mean, I think everything is achieved. सो निहारिका, हमने ये कन्वर्जेशन स्टार्ट करने से पहले ऑफलाइन बात कर रहे थे कि एक बार कुछ चीज़ चल जाता है जी. एज अ क्रिएटर, आप कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाते हो या कुछ शो बनाते हो या कैरेक्टर्स बनाते हो. जब मेरे को पता चला कि भाई ये चलना शुरू हो गया है, उसके बाद हम लगा देते हैं प्रोडक्शन लाइन. उसके बाद हम बनाते हैं फैक्ट्री की तरह कंटेंट पे कंटेंट जो आपने नहीं किया है. एंड यू सेड दिस इज समथिंग दैट यू ऑफन टॉक टू अबाउट योर इनर सर्कल. डू यू थिंक क्या वो आपको करना चाहिए था या आपने नहीं किया, तो उसका रीजन क्या है? नहीं विजय, there's absolutely no regret of not doing this thing because मेरे थॉट्स मनीष सर से यहाँ पे अलाइन होते हैं कि वो चीज़ में मुझे मज़ा ही नहीं आता है. मेरे मतलब वो आत्मा से निकलना चाहिए. माई एवरी वीडियो दैट आई हैव पुट ऑन माई यूट्यूब चैनल इज समथिंग दैट आई हैव एक्सट्रीमली लव्ड बिफोर इट हैज़ गॉन लाइव. कुछ ऐसे होंगे जो नहीं चले डेफिनेटली, लेकिन ये एक सीरीज क्रिएट कर देना आउट ऑफ नोवेयर, जबरदस्ती किसी को अपॉइंट करना कि नहीं एक स्क्रिप्ट राइटर है उससे मैं एक लिखवाऊंगी, जिससे मैं खुद अप्रूव नहीं कर रही हूँ ऑन अ क्रिएटिव लेवल, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोनेटाइजिंग इट एंड अर्निंग मनी फ्रॉम इट. मतलब मेरे जैसे लोग उस चीज़ को we will not appreciate it. Like he said, end of the day, I will not be happy about it. करने को तो आज भी कर सकते हैं, पर मन वो इच्छा ही नहीं है वो चीज़ करने की. I don't want to do it क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर मेरे में और उनमें क्या डिफरेंस है. एंड हम जैसे लोग थोड़े से इगोइस्टिक हैं जो इस बात पे अड़े रहते हैं कि नहीं भाई हमें तो अच्छा ही डिलीवर करना है, चाहे जो हो जाए, हमारी लंका क्यों ना लग जाए, वी विल डिलीवर नाइस कंटेंट ओनली, जितना हमारी कैपेसिटी में है उतना. It's like a sports career. Correct. मतलब you cannot go out there and hit centuries every day, right? That's what has fallen short of Virat Kohli also. वो 50 रन भी मारते तो लगता है कम है. कम जी भाई 50 रन बहुत होते हैं लेकिन उसको उससे सेंचुरी देखने क्या देता है ना. तो मतलब क्योंकि आप वेले बैठे हो, आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो आपको चाहिए कि निहारिका का वीडियो मेरे पास रोज एक आ जाए और मैं ये रोज देख लूं. ऐसे थोड़ी चलता है यार. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपनी, विच इज वेरी स्मॉल स्केल ऑफ द सेम एग्जाम्पल दैट यू गेव, बट टाइप्स ऑफ ब्राइड वो आत्मा से आई थी बिकॉज आई हैव सीन दैट. फिर टाइप 2 भी थोड़े टाइम बाद निकाला विच वॉज ऑल्सो फाइन. पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर अरे टाइप 3 लाओ ना, मतलब पार्ट 3 लाओ टाइप्स का. माई ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस अपने आप ना. ये जो चीजें हैं ये आपको अच्छी लगी क्योंकि ये रियलिटी है, आप रिलेट कर गए क्योंकि मैंने रियल लोगों से बात की. तुम दुल्हन थी तो तुम्हारे क्या फीलिंग्स थे, तुम दुल्हन थी तुम्हारे क्या फीलिंग्स थे, ऐसे करके 10 लड़कियों से बात की. अब टाइप 3 के लिए तो मेरे पास मतलब पार्ट 3 के लिए तो मेरे पास कोई वेडिंग क्रैश करना पड़ेगा आपको, है ही नहीं. जितनी थी शायद कवर हो गई यहाँ पे. एंड द सेम हैपेंस विद माताजी हॉल. वो बेसिकली आइडिया आया था फ्रस्ट्रेशन से. उस वक्त जो क्रिएटर्स, फैशन क्रिएटर्स थे, वो अपना हॉल करते थे, मैं ये लेके कपड़ा आई, मैं वो लेके आई. मेरे समझ में नहीं आता था इसमें मैं क्या देखूं. तुम कपड़े लाई हो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुमको, अब तुम हमें दिखा रही हो इसका ये कंटेंट. बट नाउ आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज कंटेंट. Yeah, it is. I mean, उस वक्त as a rebel new creator who's not getting traffic on her channel versus someone who's showing मैं ये कपड़ा लेके आई, उसको व्यूज मिल रहा है, तो मुझे गुस्सा आता था. तो वो जो एक सरकास्टिक नेचर है अंदर, वो बोलता था इसको ही रोस्ट कर देंगे. मतलब उसका काम बहुत टफ था यार. वही तो मैं कह रही हूँ सर, ये अंडरस्टैंडिंग अब आई है जब आपने थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया कंटेंट क्रिएशन में, कि नथिंग इज इजी एंड एवरीथिंग इज कंटेंट. आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है वो खराब है या आप उसको एक बार ऑफिस में क्या हुआ, एक लड़की ने बोला, सेजल आई थी मुझसे मिली, वी वर टॉकिंग, और हम टेक्निकल बातें करते थे, एनालिटिक्स, डेटा, ये कर्व यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे ये वो, वो करके चली गई. तो एक बार वो एक लड़की मेरे पास आई एंड वो उसने मुझे कहा कि ये मतलब ऐसे कैसे, ये क्यों चलता है, ऐसे कैसे, एंड शी वाज ट्राइंग टू मॉक सेजल कि दिस इज नॉट अ गुड, लाइक व्हाई इज शी डूइंग दिस. मैं उसके तरफ देखा, मैं बोला एक काम कर, 2 फीट दूर जा और प्लीज 1 मिनट में ये बोल के दिखा तूने आज क्या पहना है. लाइक
नहीं बोल पा रही है ना, Hmm. मतलब that's what she does and it is very tough. So learn to appreciate. Niharika, we're coming towards the end of this conversation, and here at Digitech Presents, the Creator Room, we have a ritual. For every guest who comes here, we ask this one common question. इमेजिन कर लो आपने अपने क्रिएटर जर्नी में जो कुछ भी आपको पाना था वो सब कुछ पा लिया, आपने मूवी बना लिया, डायरेक्ट कर लिया, आपने सारे कैरेक्टर्स प्ले करे जो आपको कैरेक्टर्स खेलने थे, आपने अपने ऑडियंस को जो देना था, आपके अंदर का क्रिएटिविटी का जो भूख था वो सब मिट चुका है, और फॉर वट एवर रीजन नाउ दिस इज द लास्ट वीडियो एवर दैट यू आर क्रिएटिंग, और ये लास्ट वीडियो का लास्ट लाइन है, और ये मैसेज आप अपने ऑडियंस के लिए हो सकता है या फेलो क्रिएटर्स के लिए हो सकता है. What would that line be? And you can write what that line would be, what is that message will be, and then you can read that out. This is my final CTA Yes. to my followers and subscribers. हाँ, this is emotional. ये नहीं कराना चाहिए था आप लोगों को. Hi extended family. फैमिली बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट फैमिली से ही सपोर्ट मिलने की एक्सपेक्टेशन होती है हम सभी को, एंड वॉट एवर आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ अस. मैंने सिर्फ मेहनत की, लेकिन मेरी मेहनत को आपने एक्नॉलेज किया, उसको इतने सालों तक सपोर्ट किया, जो सबके केस में नहीं हुआ है. तो मुझे यहाँ तक ला कर खड़ा कर दिया, इसके लिए ग्रेटफुल विल नॉट सफाइस. इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड. Please understand when I say this. I mean it really. I really love you a lot. Thank you. Thank you. इतना सारा कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने आप पर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बरकरार रखने के लिए थ्रू आउट ये आप लोगों का ही किया हुआ है, और आप लोगों को इसके रिटर्न में फिलहाल तो मैं थैंक यू ही दे सकती हूँ. और प्लीज मुझे याद रखना. योर कैप्टन निक. That's beautiful. Nice. Beautiful. All right. Super. We're done. We're done. That was a great Cool. Conversation, Niharika, and I think for the creators who are watching this conversation, I'm sure there's so much to take away. And I think for me personally, to stay in the game for a decade, it's not a small feat, and you continue to do so, and wish you all the best with all the dreams that you have, and hope you get to fulfill all of those, and then we connect when you are releasing your movie. Ayyo. Yeah. Touch wood to that. Yes. Yeah. And also my team has put together something for you so that this reminds you of how far you have come. Ayyo. This is so Yes. beautiful. Thank you, guys. The bridal video had to be here. Yes. हाँ, आई कैप्टन निक. ये आई भी मैंने नहीं बनाया था, ये सब ऑडियंस का प्यार है. Oh God, this is so beautiful. Thank you so much, Manish sir and Vijay. Yeah, that's all Really. Vijay and Vijay's team doing some magic. Thank you, Vijay and Vijay's team. Thank you so much. Yeah. And from our friends at Digitech, they have something कुछ that they have gift sent whoop. us. ऐसे So हाथ thank you so खाली much for हाथ being on नहीं the show. जाएंगे. Networking करो, guys. Gift Yes. मिलता है. Super.